once again for joining us today. And Vanshij, can I request you to if you can switch on your camera, please? Vanshij, are you there? Vanshij, are you there? Yeah. Can you switch on your camera, please, if you are comfortable? We are good to go now. Okay. Okay, so let's start the discussion. Okay. So, 2000, as we all know, 2019 has been the year where students have participated so much actively in the politics, and they have been in news around everywhere. And in India, we cannot ignore the role of students in politics when it comes, starting from the independence, be it everywhere, students have participated so actively in politics. But the debate is this, many people have been arguing that students should limit themselves to studies only. They are wasting their time in politics. And some students are also asking and saying that students organizations are disrupting the atmosphere at the campuses, and they are affecting studies, and they are saying that they should focus only on their studies. So here we are today in this panel discussion to discuss the different dimensions of student politics in India, and why, what are its consequences, how students have participated in politics, and yeah. So before beginning, I will be just saying what some rules. This meeting will be under time constraints. We have only 40 minutes, and the medium of conversation will be bilingual. You are free to speak either in English or Hindi, and you all will get a chance to speak. And yeah, so I will be introducing all the panelists one by one. We have with us Aishi Ghosh, JNU SU President, member of SFI. We have with us Akshay Lakra, who is the NSUI Delhi President, also a law student from University of Delhi. And we have with us Vanshij Tyagi, member of ABVP, also Secretary of Student Union of Motilal Nehru College. I welcome you all to this panel discussion. Hope this will be enriching and informative. So yeah, let's start it. So to begin with, I will ask this question to all of you. All of you are from leading students organizations of India, and have been participating actively in politics. So what's your take on the role of students in politics, and how do you see it? And do you think government should interfere in student politics? And yeah, basically and how it's the present scenario affecting the student politics. So I will begin with Aishi. So over to you, Aishi. पहले तो अजय, आपको आपके संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि, और कई, मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत नया सवाल है। पिछले 4-5 सालों में उभर के ये सवाल बार बार आई है, और अभी के वक्त नहीं, मैं ये बार बार बोलूंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले भी ये सवाल हमारे इतिहास में आता जाता रहता था कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आई थिंक सो दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एंड आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। एंड मेरे जो को पैनलिस्ट है वो सारे दोनों ही एक छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं, तो ये बात तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम लोग तीनों ही मानते हैं कि छात्रों को राजनीति में का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और इसीलिए हम तीन अलग संगठन में, हाँ शायद मेरे को पैनलिस्ट के ऑब्वियसली विचारधारा अलग है मेरे से, लेकिन ये हम
बेसिक जो बुनियादी सवाल है जिसपे आज हमारा डिस्कशन हो रहा है कि स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स की बात है, उसमें हम लोग तीनों ही अग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स में होना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग तीनों ही अलग अलग विचारधारा के पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से युक्त है, लिंक्ड है। अब पहला जो सवाल है, क्योंकि आज 26 तारीख है, 28 तारीख को हम लोग भगत सिंह का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो जनरली मनाते हैं, तो मैं एक चीज से जरूर शुरू करना चाहूंगी कि कई साल पहले जब मतलब भगत सिंह की मतलब मार्टियरडम से काफी साल पहले उन्होंने एक मतलब पंक्ति मतलब लिखा था, एक लेटर लिखा था addressing to the students of the country at that time, that whether what is the role of students in politics, and वहां पे उन्होंने बहुत साफ और क्लियर तरीके से बोला था उस टाइम पे कि जब अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है उस टाइम पे स्टूडेंट्स का पढ़ना तो जरूर जरूरत है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो समाज के बुनियादी चीजें हैं उस पर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। आज उस टाइम के हिसाब से उन्हें बोला था कि आज अगर जब अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, जब हमारे लोग पीड़ित थे इनके टाइम पे, तो अगर स्टूडेंट्स या युवा इस चीज को नहीं समझेंगे और इस बुनियादी सवाल को समाज के लोगों के सामने पढ़ लिख कर खड़ा नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स होने का कोई मतलब नहीं है। और मैं वहीं से इस बात को आज खींचना चाहूंगी कि पहले की सवाल है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स पढ़ लिखना चाहिए। पहले तो साहब जो आप लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स है हम, 18 साल के बाद हमारे पास वोटिंग राइट्स होती है, तो महज हर चीज पॉलिटिकल है, चाहे हमारे देश में हो, पूरी ग्लोबल ऑर्डर में हो। जब हम पॉलिटिक्स जब हम वोट 18 साल के बाद हमें वोटिंग राइट्स मिलती, हमें वोट देने जाते, हम बोलते हैं वो पॉलिटिकल है, हम वोट नहीं देते, जो लोग नोटा में जाके वोट करते हैं वो भी एक पॉलिटिकल एक्ट है। सो नथिंग हैपनिंग अराउंड अस इज अपॉलिटिकल और न्यूट्रल। जो भी अपना डिसीजन लेता है काफी पॉलिटिकल चीजों से पॉलिटिकल एक थिंकिंग से लेता है। तो पहले तो ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली बोलना चाहूंगी कि भाई स्टूडेंट्स को तो पॉलिटिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मानती हूँ कि चाहे आज हमारी शिक्षा का सवाल हो, हमारी नौकरी की सवाल हो, आज जो कल किसान को हमने रास्ते में देखा कि वो अपने जो बुनियादी प्रश्न है वो सरकार से पूछना चाहते हैं, वो रास्ते पे उतर के आए हैं। आज हमारे नमक का सवाल हो, अभी एसेंशियल कमोडिटी से प्याज दाल ये सबको हटा दिया गया है, उसका सवाल हो, पूछने का अधिकार या पॉलिटिकल प्रश्न पूछने का हमारे आसपास में जो हो रहा है उसका अधिकार सबको है और होना चाहिए, और खास करके स्टूडेंट्स को होना चाहिए। पहली तो ये बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज में डिबेट को मैंने डिस्कोर्स को लेना चाहूंगी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जब बोलना होना होता है कि उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू बी पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एमएलए एमपी बन जाओ, आप पीएम सीएम बन जाओ, आप जाके पार्लियामेंट में बैठ जाओ। ये दिस इज अ पार्ट, क्योंकि हम एक पार्टी को चुनते हैं, ये डेमोक्रेसी है, हम ये बिलीव करते हैं ये डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमिटी है, हम लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट करते हैं पार्टी को, और वो पार्टी मतलब हम एमएलए एमपीज हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको नियुक्त करते हैं, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है जिस पार्टी का भी बहुमत होता है वो जाके वहां से हमारा पीएम जो भी जैसे जैसे स्टेट्स में अलग है जैसे होता है वो इलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है। नाउ द थिंग इज कि यही जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं यही जाके कल पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए पॉलिसीज बनाता है। वही पॉलिसीज आज आपका नमक का कीमत 5 रुपए है कि 50 है, आपकी शिक्षा जेएनयू में आपको या किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं जेएनयू से हूँ तो मैं जेएनयू की बात बोल रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि जेएनयू की हॉस्टल की फीस बढ़ रही थी, तो जब हमने बोला तो हमसे पूछा गया, तो जब यही बात है कि अगर आज हम टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हैं तो ये तो हमारी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बोले हमारे समाज में अगर आज दलित की उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं शोषित हो रहे हैं, तो दिस इज आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम टैक्स पेयर के पैसे से अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो हम उस बुनियादी सवाल को समाज के सामने रखें कि आज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है धोखा तब होगा जब हम टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने विमेन राइट्स के बारे में पढ़ा है, मैंने माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए हर एक संस्था में, और जब मैं देखूंगी अपने इंस्टीट्यूशन में कि रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है
जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटीज है, ये पिछले 2 साल से मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में हो रहा है। जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स है उनको ठीक तरीके से सीट नहीं दिया जा रहा है, उनके सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर ये हो रहा है और मैं इस पे आवाज उठाऊं, तो ये तो जरूर होना चाहिए कि मैं उस बात पे आवाज उठाऊं, क्योंकि द context of politics has come down to only becoming a very procedural politics, a procedural process of democracy, which is something I oppose, because एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स या वोट या इलेक्शन प्रोसीड्योर सिर्फ प्रोसीड्यूरल नहीं हो सकता है कि 5 साल बाद आप इस पार्टी को वोट दे देना, बस आपका इस देश के अंदर नागरिक होने का इतना ही जिम्मेदारी है कि 5 साल बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनो। नहीं, ये आपका काम नहीं है। कितनी देर में फ्री होगा? What is happening around us, that should be questioned or not. It can be of different political ideas, and that is the thing. हम लोग जिस पॉलिटिकल संगठन से आते हैं, करोड़ों युवा है जो हमारे पॉलिटिकल संगठन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन still they have the space कि they can choose an alternative political idea. They can have a different political idea in a democracy, and that is exactly what our constitution guarantees us, that everybody has their right to question. और ये विवेकानंद खुद बोलते थे कि युवा वो है जो असल में मतलब जो धारा है उसके विपरीत चल के प्रश्न इस समाज में एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करते हैं, वो एक्चुअल युवा है। तो जब हम बोलते हैं कि हम युवा है, हमारी जो देश के अंदर जो शक्ति है उसको हम लोग मतलब यूनाइट करते हैं, एक बहुत यंग डेमोक्रेसी है, तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली पॉलिटिकल होना चाहिए, उनको प्रश्न करना चाहिए। एंड politics is not merely winning a seat, winning a particular about constituency or going only to the parliament. It's also about the opposition, it's also about being in the pressure group, क्योंकि political science में हम पढ़ते हैं कि pressure group का कितना बड़ा रोल रहता है। तो students in this society have always been a very important part of those pressure groups in creating or formulating or molding policies. That's it. Thank you. Thanks, Aishi, for your views. So now I will ask Akshay. So Akshay, जैसे आयशी ने कहा कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में, और वो आप तीनों ही एग्री करेंगे बिकॉज आप तीनों ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बीइंग फ्रॉम NSUI which represents left, आपका क्या इस पे व्यू है? और आप NSUI represents Congress, not left. Yeah, okay. I mean that only, sorry. So मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका इस पे क्या व्यू है, और आप क्या मतलब आप क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट्स का जो रोल है उनका कितने एक्सटेंट तक होना चाहिए, या फिर उनके पे कुछ लिमिट्स या फिर बैलेंस होने चाहिए, या फिर मतलब या फिर उनको एक पूरी आज़ादी होनी चाहिए? तो आपका क्या व्यू है? जो भारत देश के अंदर पैदा हुआ है और शायद 18 साल से ऊपर, उसको शायद पूरी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। मेरे से पहले पूर्व वक्ता आयशी घोष बहन हमारी JNU की क्रांतिकारी अभी अध्यक्ष है, और अभी इनका कार्यकाल चल ही रहा है, अगला चुनाव घोषित नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है, मेरे साथी जो विद्यार्थी परिषद से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ मेरे जूनियर है, मैं इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं छात्र राजनीति जरूरी है। और जैसे आयशी जी ने कहा कि राजनीति जरूरी है, मैं वहीं छात्र राजनीति को एक मजबूरी बताऊंगा आज भारत देश की, क्योंकि आप यदि इस 2020 के समय में देखें, जब 2020 साल आधा जा चुका है, आधे से भी ज्यादा जा चुका है, हमारे एक जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है, उसकी एवरेज एज आप देखोगे वो 60 साल से ऊपर है। 60+ people on an average are holding the top ministerial post in the BJP government right now in this country. और ये अभी मैं नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अभी है, ये बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है, ये पिछले 20 सालों से है कि आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है। एवरेज जो आपकी एज निकाली जाए सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो 35 साल से ज्यादा है, और लगभग सभी 50 साल से ऊपर है। और आपने उन लोगों को संसद में बिठाया है जो लोग 125 करोड़ भारतवासी, जिसमें से 60% से ज्यादा 35 साल से कम है। और अगर आप हर भारतवासी की उम्र का औसत निकालें
आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सभी लोग युवा हैं। हम 2020 में तो सभी को आज गूगल यूज कर लेते होंगे, आप लोग इतने एवरेज तो आपको सबको आता ही होगी। 29 साल देश की एवरेज है, औसतन उम्र 29 साल है। हमारे मंत्रिमंडल जो है वो सभी 60 साल से ऊपर के हैं। तो आज छात्र राजनीति इस देश की एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि आपको वो लोग चाहिए जो संसद के अंदर बैठे और उस बात पर फैसला करे, जो आपकी पॉलिसीज बनाए। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 60+ पर्सन टू दे विल बी सिटिंग ऑन अ टेबल जहां पर सभी प्रदेशों के लोग बैठे और वो लोग हमारी एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करेंगे। तो जैसी पॉलिसी बन के आई आप वो पॉलिसी देखोगे। आप अगर देखोगे कि उनमें से अभी यदि आप देखोगे कि आपने छात्र राजनीति की बात करी है, छात्र राजनीति को बहुत कुछ सालों से कुछ क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा है, वो उसको कलंकित करने की कोशिश कर रही है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप अभी तक छात्र राजनीति, अरे भाई छात्र अगर राजनीति में है तो क्या तकलीफ, अगर वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो नेता बन रहा है तो आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आप लोगों ने एक उसको टैग देने की कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर इन यूनिवर्सिटीज के बच्चे, इन पार्टीज के लोग, ये लोग नक्सली हैं। अगर एक औरत आवाज उठाती है अपनी गलत के खिलाफ तो उसको आप लोग बाजारू डिक्लेयर कर देते हो। एक छात्र आवाज उठाता है तो आप उसको नक्सली डिक्लेयर कर देते हो। और अगर आजकल किसान अपनी आवाज उठा रहे तो उनको आजकल ट्रेंड में एक हीरोइन है, उन्होंने कह दिया कि तुम सब आतंकी हो। तो ये इनका ट्रेंड है। और मेरे हिसाब से जहां तक आपने इस टॉपिक की बात करी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज अ न्यू डायमेंशन, आई थिंक इट्स नॉट अ न्यू डायमेंशन। और हमको पॉलिटिक्स को न्यू डायमेंशन देनी पड़ेगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से, क्योंकि जब तक हम लोग उस संस्था में नहीं पहुंचेंगे, हम लोग उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं पहुंचेंगे, जब तक देश के जरूरी फैसलों में हमारी भागीदारी नहीं होगी, तब तक मेरे हिसाब से अगर आप यदि सोचें कि आप पंक्ति में खड़े उस आखिरी इंसान तक पहुंच पाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और India is a young nation, but we have an old cabinet. That is the problem we are facing right now. Not just an old cabinet, we are having a very old parliament. आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो नहीं बना रहे हो, लेकिन आप पार्लियामेंटेरियंस नए कहां से लेकर आओगे जो आपको अच्छे आइडियाज देंगे, जो आपको नए आइडिया देंगे, ना कि आपको आपने उस अभी हम भारत देश ही क्या, अभी पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, तो यदि शायद आपके जो पार्लियामेंटेरियंस है वो यंग होते, वो पढ़े लिखे होते, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस से निकल कर आए होते, तो वो शायद आपको ताली थाली, भाभी जी के पापड़ और कीचड़ में लेट के शंख बजाने के जैसे कोरोना महामारी के निकलने वाले उपाय नहीं बताते। वो लोग जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छे सॉल्यूशंस, ऑप्शंस बता रहे होते, जो कि बाकी देशों में हमको देखने को मिला है। और यदि आप काफी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, और खासकर अगर मैं एग्जांपल दूं न्यूजीलैंड का, ताइवान का, इन दो देशों ने सबसे पहले कोरोना महामारी को मात दी है। आज इन देशों के अंदर लोग बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं, और ये देश वो है जिनको आप दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज में काउंट नहीं कर रहे हो, लेकिन इनका मंत्रिमंडल, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके प्राइम मिनिस्टर्स इतनी यंग एज पर है, वो महिला प्रधानमंत्री है, वो इतनी यंग है कि उनकी ही वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से, उनके पार्लियामेंट की वजह से, और वहां की एक जो पॉलिसी मेकिंग इस तरीके से हुई है कि आज उन लोगों ने कोरोना को मात दी और वो अपने साथी देशों को भी मदद कर रहे हैं। ये देश जो है, ये अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूके जैसे टॉप क्लास देशों में आप इनकी गिनती ना करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड और ताइवान, जिनको आप हालांकि हल्का सा इग्नोर करके चल रहे हो, लेकिन उन्होंने आज देश के सामने विश्व पटल पर अपनी एक बात, अपना लोहा मनवाया है। और जब एक युवा दिमाग और एक नई सोच आती है तो कहीं ना कहीं आपको वो एक अच्छा ऑप्शन देती है। I will come back to you. Okay. Thank you for your views. I can agree with you. Like students का बहुत ज़्यादा important role है और हमारे देश को अभी ज़रूरत है जो युवा की ही है। तो मेरा अगला सवाल है वंशज से, जो ABVP से है, और मैं आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है पॉलिटिक्स में। लेकिन जब बात आती है ABVP की, तो हम देखते हैं कि कई बार पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे हिंसा का उपयोग हुआ है। तो आपका क्या इस पर व्यू है कि स्टूडेंट्स का मतलब क्या यूज, तब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि स्टूडेंट्स का क्या इस पे यूज ऑफ वायलेंस एंड और आप कैसे देखते हैं कि
क्या सरकार को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मतलब कंट्रोल करना चाहिए उनको, या फिर उनको आप मतलब कैसे देखते हैं? तो ये मेरा आपसे इस पे व्यू है। हेलो, आई एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंशज त्यागी मोतीलाल से छात्र संघ सचिव हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे से पहले दो वक्ताओं ने छात्र राजनीति को लेकर काफी अच्छे और सरल विचार रखे। सबसे पहले आपका विचार था कि सरकार को छात्र राजनीति पर नियंत्रण रखना चाहिए। शायद जिन लोगों को हम छात्र राजनीति का आदर्श मानते हैं, ऐसे राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, और हमें अपने देश के उन नेताओं को पढ़ने की आवश्यकता है जो कहते थे कि अगर कोई सरकार किसी छात्र की या छात्र राजनीति पर अगर अपना परचम लहराने लगेगी या छात्र राजनीति पर अपना आधिपत्य जमाने लगेगी तो उस छात्र राजनीति का कुछ फायदा नहीं है। तो सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। छात्र राजनीति और छात्र संगठन एक सरकार से अलग होने चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग होना चाहिए। हमारा जो संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो किसी राजनीतिक विचारधारा से इसीलिए नहीं जुड़ा हुआ कि क्योंकि छात्र संगठन एक अपनी अलग विचारधारा रखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका हिंसा को लेकर था। तो कोई नहीं चाहेगा कि छात्रों के मध्य हिंसा हो और इस तरह की चीजें आए। जो आपका जो टॉपिक था द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कभी भी डायमेंशन हिंसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अगर बेसिस की मैं बात करूं, मतलब आप इसके हिंसा के सभी खिलाफ होंगे। इसमें मेरे दोनों पैनलिस्ट जो हैं वो हमेशा वे भी हमेशा खिलाफ होंगे और मैं भी हमेशा खिलाफ होऊंगा। हम अगर इसके बेसिस की बात करें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो बेसिस होने चाहिए वो एजुकेशन होनी चाहिए, सोशल बेसिस होना चाहिए, डेवलपमेंट बेसिस होना चाहिए, और ये तीनों चीजें एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। गांधी जी कहा करते थे कि भारत के युवाओं को अपने शिक्षा को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा तथा देश के प्रत्येक नागरिक को जो वो काम कर रहे हैं अपने पूर्ण अधिकार से करना होगा। इसी तरह की भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी एम रहा है कि बीइंग वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ नेशन रिकंस्ट्रक्शन। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लगातार। वंशित, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और ये कैसे उसको अफेक्ट कर? आज के समय में सोशल मीडिया का बड़ा अधिक प्रभाव पड़ चुका है। आज अगर आप देखें तो आप एक व्यक्ति को नहीं जानते परंतु आप सोशल मीडिया पर उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को देखते हैं तो अगर उसमें लिंडो कमेटी का आप वो माने तो केवल 5,000 रुपए में आप इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसा और 51 कॉलेज है, अगर आप ऑटो से भी अगर एक कॉलेज में जाए तो वो संभव नहीं है। परंतु एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आया है कि हम जिसके द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्र से जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो शायद सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है आगामी राजनीति के लिए भी, आगामी छात्र राजनीति के लिए भी, और वो अब सिद्ध भी हो रहा है। आयशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अपना अगला सवाल। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो युवा है वो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, उनको पता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है और इसके मैं कहूँगी कि ज़्यादा ओपन माइंडेड है दूसरों के व्यूज़ को लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता कि there is a like romanticization of this students participation in politics, like because I think protest should be the last resort, but it's like it has become a kind of like the first way of raising your voice, and they don't like students are not looking for other ways, they are just going for the protest and they have like choose this only or as their last option. So आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जो साथी इतना गांधी जी का नाम ले रहे थे, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि गांधी जी ने तो बहुत कुछ ही बोला है, ये बात तो सही है, बहुत कुछ बोल के गए हैं, हम पढ़ते भी है। लेकिन गांधी जी को जिसने मारा और उनका जो स्टैचू पे आजकल मतलब गार्लैंड लगाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उनको
जय जयकार जो किया जाता है, वो भी एमपीज आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हैं, जिन्होंने गांधी जी को मारा। हमें पता है कि कौन से संगठन से वो लिंक्ड है। और ये जो बार बार एक डिस्कोर्स में पहले बोलना चाहूंगी, बार बार जो डिस्कोर्स किया जाता है कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और protest is the last resort. I would disagree from that thing. First of all, in a democracy, जितना importance पक्ष का है उतना ही importance विपक्ष का है। लेकिन जब एक स्टूडेंट्स जब बात अपना रख रहे हैं, जब डायलॉग डेमोक्रेसी के अंदर खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, तो जब डेमोक्रेसी के पथ पे छोड़ के तानाशाह का एक ऑर्डर हमारे समाज के अंदर बन रहा है, जहाँ पे आपको सुना नहीं जाता है। अगर मैंने पहली दिन बोला कि मैं इस व्यू की हूँ, हो सकता है कि मेरे जो साथी वो अलग, मेरे आसपास के, सिर्फ यहाँ पे जो पैनलिस्ट नहीं है, मेरे अगल बगल के जो दोस्त है, वो शायद हो सकता है कि मेरे बात से अग्री ना करे, लेकिन पहली बात पे ये बोल देना कि तो ये नक्सली गुंडी है, इसका स्पीच फेक था, और मतलब महिला है तो और भी रेप की धमकी, थ्रेट्स, मतलब ये तो स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे बाहर निकाल के मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हर एक महिला आजकल फेस कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली मी एज अ पर्सन, मेनी स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, जितना सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस है, हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो अपनी बात रख रहे हैं, बेमतलब को उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। सबको हक है इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में अपना बात रखने का, ओपिनियन रखने का। एक मिनट, तो मैं उसी बात पे बोल रही हूँ कि जेएनयू में भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत लोगों ने बोला था कि प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब वाइस चांसलर बात नहीं करता है, जब उस तरफ से कोई आवाज नहीं आता है, जब एक सोशल ऑर्डर को एक नॉर्म बना दिया जाता है इस देश के अंदर कि भाई हम सत्ता में आए हैं, हम इतने सीट से आए हैं, हमारे पास नंबर है, तो हमें जो मन है हम करेंगे। विपक्ष ने विपक्ष पार्लियामेंट से निकल जाता है, लेकिन हमें बिल पास करवाना है उस टाइम पे, हमें साथ साथ, ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं है, पिछले 3-4 दिन में हमने देखा है कि ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया तो उसी टाइम पे सुलझा के या उनकी बात नहीं सुनना है, लेकिन ये करना है कि हमें उस टाइम पे बिल पास कर देना है, ऑडियो म्यूट कर देना है। मतलब ये जो एक नॉर्म हमारी सोसाइटी में बनते जा रहा है कि मुझे वही सुनना है जो मुझे सुनना है, मतलब जो मैं जानती हूँ मुझे वही सुनना है और दूसरे का नहीं सुनना है। तो दिस इज आई थिंक सो बिकमिंग अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन आवर डेमोक्रेसी, बिकॉज मैंने फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि एक डेमोक्रेसी में जितना पक्ष का रोल है उतना ही विपक्ष का रोल है, और इसीलिए मैं नहीं देखती हूँ कि प्रोटेस्ट इज द लास्ट रिसोर्ट। ऑब्वियसली डायलॉग शुड बी देयर, has to be there, dialogue has to be there, communication has to be there, but protest is just a form of expression. अब protest का क्या माध्यम होगा, क्या होगा, that is just a form of expression to say that we don't agree to a particular policy. It has no negative thing. अगर महिलाएं कल रस्तों पे, सड़क पे उतर के बोल रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें सेफ्टी नहीं फील हो रही है, तो इसमें गलत नहीं है, वो जरूर फील कर रहे होंगे कि उनको सेफ्टी नहीं है, तो ये हायर ऑथोरिटीज पे डिपेंड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंस होगा कि वो उस प्रेशर ग्रुप के साथ बात करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, या कोई नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आज देश के अंदर युवाएं बोल रहे हैं कि हम रास्ते सड़क पे उतर रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट, ये तो आंकड़ा है, सर्वे है कि इतने जॉब्स लास्ट, स्विगी के लोग, अभी मैं करंट एग्जांपल एक ले लेती हूँ और एंड करती हूँ, स्विगी के जो वर्कर्स है, डिलीवरी बॉयज है और डिलीवरी वर्कर्स है, वो लोग सड़क पे उतर के बेंगलोर में, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए या उनको जो मिनिमम रेट मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनसे बात कौन करेगा। प्रोटेस्ट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी अग्री और disagree to a particular policy or anything that is happening around us, and it has nothing bad to it. So when as student also we protest, it is just to make sure that our voices are heard. बहुत टाइम ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों से प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है कल इन सॉलिडारिटी विद आवर फार्मर्स इन आवर कंट्री। पीपल माइट से इससे कोई रिलेशन नहीं है हम लोगों का, लेकिन हम ये जानते हैं कि मेस में जो आज खाना आता है हमारे लिए, वो खाना नहीं आ पाएगा अगर हमारे देश के किसान इस तरीके से सुसाइड करेंगे। हमें पता है कि कल अगर बाजार में प्याज का दाम 100 रुपए किलो हो जाएगा तो हमारे जो मेस बिल है उसमें भी महंगाई आएगी। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी पढ़ाई, नथिंग इज एन एक्सक्लूजन ऑफ आवर सोसाइटी, एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। यूनिवर्सिटीज आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आवर सोसाइटी।
तो आयशी, आई विल एग्री विद यू. लड़कियों का अगर इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, तो जेंडर, इफ यू टॉक अबाउट रोल ऑफ जेंडर, तो उसका एक अलग ही व्यू आ जाएगा. रोल ऑफ लाइक गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जिनको एक अलग तरीके से देखा जाता है और टारगेट किया जाता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ बिगर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अक्षय से ये है कि आर स्टूडेंट पॉलिटिक्स ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, या फिर वो सच में कोई रियल ओके, am I audible now? Hello? Yes, please. Can you hear me? Yes, please. So, yeah. Yes, Akshay, yes. Akshay, I want to ask you, like, do you think student politics जो है वो national और state level politics को ही represent कर रही है, या फिर वो सच में कोई real resistance या फिर government के खिलाफ are they offering, or do you think they are just coming under the state या national level politics के अंदर? Are they really offering a true resistance to the government? Yes, I agree to that, and they are offering a resistance, and they are not just a true picture what is going on in the state and the national level politics. If we talk about Delhi itself, I mean, the Aam Aadmi Party was having a clear-cut mandate in the Delhi Assembly, and they decided to go and contest for the Delhi University Student Union elections, and they terribly failed. And the next time they collated with the left, and they terribly failed again. So I guess it's not right to say that the student union elections are just the clear depiction of what is the national level politics and the state level politics is. But I would like to add up, because मुझसे पहले आईसीजी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उससे पहले जो पूर्व वक्ता थे त्यागी जी मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि गांधी जी ने कहा था, अगर आप छात्र आंदोलन की बात करें तो मेरे हिसाब से जेपी आंदोलन की जो नींव रखी गई थी वो छात्र आंदोलन ने रखी. आप उससे पहले बात करेंगे मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया, वो भी एक छात्र आंदोलन की नहीं उसकी नींव रखी थी. आप उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उस सदी में भी छात्रों ने और युवाओं ने ही अपनी आवाज को उस समय पर बुलंद किया था. और जहां तक ये बात कहना कि हम गांधी जी की बात से एग्री कर रहे हैं, हम गांधी जी और की बातों पर एग्री करेंगे, लेकिन आप भगत सिंह की बात से एग्री करते हैं तो आप सावरकर से एग्री नहीं करेंगे. आप भगत सिंह से एग्री करते हैं तो आप गोडसे से एग्री नहीं करेंगे. आपको क्लियर कट और एक डिसाइसिव पॉलिटिक्स पड़ेगी, और ये आज का युवा सभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बेसिकली एक्सपेक्ट करता है. और ये बात युवा देख रहा है कि जब पिछले 6 महीने में कोरोना महामारी का संकट आया तो कौन सी पार्टी, कौन से संगठन, कौन से लोग उनके लिए खड़े थे. जब मास प्रमोशन की पॉलिसी की बात आती है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है, जब पूछा जाता है कि बच्चों का एकेडमिक ईयर कैसे बचाया जाएगा, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा. जब नीट और जेई के बच्चे सड़क पर धक्के खा रहे होते हैं तो उनके लिए आवाज बुलंद करने के लिए कौन आता है. तो ये बातें जब एसएससी के बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, जब किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, जब रेलवे बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन उनके लिए अपनी आवाज उठाता है. तो बच्चा और जो देश का युवा है खासकर वो उस बात को नोट कर लेता है. लेकिन उस बात का इम्पैक्ट आपको थोड़े टाइम पर और दिखता है, क्योंकि एक जिस प्रकार से एक स्ट्रीमलाइन मीडिया ने जिस तरीके से बना रखा है कि आपको सिर्फ वो न्यूज नहीं दिखाते हैं, आपको व्यूज दिखाते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर लीडर को एक हीरोइक तरीके से पेश करना पड़ता है. तो ऐसे बुरे समय पे आज जो यूथ है कंट्री का, जो खासकर स्टूडेंट्स है, वेल कनेक्टेड विद फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. जब 12वीं क्लास के बच्चे सीबीएसई, नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर अपनी आवाज ट्विटर पर बुलंद कर देते हैं और एचआरडी मिनिस्टर को मजबूर करते हैं जवाब देने के लिए, तो वो बच्चे जागरूक हैं. वो बच्चे नेशनलिज्म की आंधी में वो आपके साथ उड़ने वाले नहीं है. वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और आपसे जवाब मांगते हैं. और जब वोट देने की बारी आती है तो वो आपको वोट की चोट भी मारते हैं, और ये आपको दिख जाता है. क्योंकि मेरे हिसाब से 2019 का इलेक्शन यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप सभी ने, एक हिंदी की कहावत है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ाई जाती है, कि जो हांडी बनती है खाना बनाने के लिए, यदि वो काठ की हो, लकड़ी की हो, तो उसमें एक ही बार खाना बने, क्योंकि फिर उसके बाद वो जल के राख हो जाएगी. तो मेरे हिसाब से 2019 के चुनाव को यदि आप छोड़ दे, वो जिस नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस बेसिस पर वो चुनाव लड़ा गया है ना,
उसके अलावा हर चुनाव के अंदर स्टूडेंट्स ने और युवाओं ने अपनी आवाज को बुलंद करके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो 2014 में, चाहे उससे पहले 2004 के अंदर अटल जी का एनडीए का गठबंधन ही क्यों ना हो। तो उस समय पर हर वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद करी, और ये बात से हम बिल्कुल एग्री करेंगे कि इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट एंड मच डिमांडेड बाय द सोसाइटी कि आप स्टूडेंट्स की वॉइसेस को कंसिडर करें। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं वंशिक से पूछना चाहूँगी कि आपका क्या राय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस बहुत ही फेमस हैं, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत लोगों का ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैव बिकम सो डर्टी एंड स्टूडेंट्स को इससे दूर रहना चाहिए। मेनी स्टूडेंट्स आर अफ्रेड आल्सो ऑफ एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स and they are like ki we don't want to go to north campus, we don't want to go to certain universities, I will not take their names because there is an atmosphere, ऐसे एक माहौल बना दिया गया है कि ये यूनिवर्सिटी में तो यही होता है, पढ़ाई होती है। तो वंशज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस कहाँ, मतलब ये इतने कहा जाता है कि उसमें कैंपेनिंग में बहुत campaigning में they are using they are like attracting people and they are not fair elections। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस माइंडसेट के बारे में जो लोगों का बन गया है, और पेरेंट्स के अंदर भी बहुत डर है कि हम अपने स्टूडेंट हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं भेजना चाहते जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक्टिव। सबसे पहले अगर बात दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों की आपने की, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र अगर यूजीसी ने एक सभी यूनिवर्सिटियों के लिए एक गाइडलाइन बनाई है जो लिंडो कमेटी की जो गाइडलाइन है कि उसको फॉलो करना चाहिए, परंतु क्या आपको लगता है कि वो लिंडो कमेटी की जो सारी रिपोर्ट हैं वो समिति ने जो दी हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो हो सकती हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 51 कॉलेजेस जिस डूसू के अंतर्गत आते हैं, क्या वो उसके अंदर आकर 53 कॉलेजेस में उसके अंदर आकर उस चीज को फॉलो कर सकते हैं? तो शायद सबसे पहले हमें उस नीति को सुधार की आवश्यकता है कि उस लिंडो कमेटी की उस नीतियों में सुधार हो। उस लिंडो कमेटी की जब नीतियों में सुधार होगा तो फिर उन कानूनों का भी तरीके से पालन हो, तो शायद आप देखेंगे कि बेहतर छात्र राजनीति होगी। मेरे सभी दोनों पैनलिस्ट ने छात्र राजनीति के सभी पक्ष... But Vanshal, are you saying that you are explaining the clarification behind the violation of Lindo committee by VP and your party? No, मैं कह रहा हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैंने बात नहीं की, मैं केवल लिंडो में सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने जस्टिफाई किया ना उसको कि वो पॉसिबल नहीं है, उसको ठीक करें, ऐसा तो हो ही नहीं पाता। आप अपने आप बताइएगा, अगर आप ऑटो से भी अगर आप मैंने जो बात उठाई कि अगर जस्टिफिकेशन पूछ रहा हूँ कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से अगर लिंडो कमेटी की जो गाइडलाइन बनी है क्या उस हिसाब से पॉसिबल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कुछ कमेटियों में कुछ चीजों में सुधार हो तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। अगर एक यूनिवर्सिटी जेएनयू है, वो एक क्लोज कैंपस है, उसमें 8000 बच्चे हैं, एक अगर मैं पेपर पैम्पलेट अपना जीरोक्स कॉपी निकाल पर भी 50 पैसे पर कॉपी में वे अपना बांटकर अपने 5000 रुपए में और इन सब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बात पहुंचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे कैंपस अलग अलग चीजें, कुछ चीजों में सुधार हो जो गाइडलाइन है। आपने शायद जेयू में इलेक्शन पे एबीवीपी को भी नहीं देखा होगा। मतलब मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है बहुत सारे छात्र संगठनों में जेएनयू में कि बहुत टाइम पेपर भी नहीं यूज करते हैं। बहुत क्लियरली एक चीज को लड़ा जाता है कि ये आइडिया है, ये मैनिफेस्टो है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और उस आवाज को पहुंचाई जाती है स्टूडेंट्स में, जिसके आधार पे आप शायद प्रेसिडेंशियल जो होता है और साथ साथ सारे उस पर डिबेट होता है। उस हिसाब से डिबेट में भी आपकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी गया था। आप दोनों यूनिवर्सिटी का अंतर समझिए। जो जेएनयू है वहां पर ज्यादातर छात्र मास्टर्स और पीएचडी करने वाले हैं, वो शायद, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहां पर ज्यादातर छात्र ग्रेजुएशन वाले हैं। तो एक शायद समझ का भी और सभी चीजों का अंतर है, अलग अलग जगह पर कैंपस है, और शायद वो सब छात्र जो मास्टर्स में जाते हैं
और केवल कोर्ट को हटा दें तो उसके अलावा मास्टर और पीएचडी वाले हैं वो शायद इतने समग्र हो जाते हैं, इतनी चीजों को समझ जाते हैं कि कौन किस तरीके से। जब एक 12th के बाद एक नवयुवक जिसे आप कहेंगे वो कैंपस में आता है, उसे किस चीज का पता नहीं होता, उसे चीजों को बताने के लिए शायद आपको अपने आप जाना पड़ेगा। के लिए पिज्जा और कोक भिजवाने की जरूरत नहीं होती। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ और मैं खुद दौलत राम कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि किस आधार पे पिज्जा ये पिज्जा और कोक लड़वाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करता। ये कभी किया है तो सामने एनएसयूआई वालों ने किया होगा या इन्होंने किया होगा। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रेजेंस था जब मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, मेरा रोल नंबर भी गायब नहीं हुआ है। आप वहां से मतलब आजकल कोई डिग्री लोगों की मिलती नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहीं से मिलेगा। मैं बोल रही हूँ, और ये मैं अपर्णा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मैं ये भी बोल देती हूँ उस टाइम पे, और हमारे हॉस्टल्स में एबीवीपी बस भिजवाते थे कि लड़कियां जाके सिनेमा देखें। मैं बता रही हूँ आपको, और जो कल्चर वहाँ पे है वो गलत है, और वो छात्र संगठन सुधारने के, वहाँ पे जो लेफ्ट छात्र संगठन है वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्शन इस बात पे नहीं लड़नी चाहिए कि पैसे आप क्या कह रहे हैं? है अगर ऐसा होता तो हर साल क्या छात्र विद्यार्थी परिषद को चुनते, विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद को सबको चुनते। अगर आप ये फरीब की बात कर रहे हैं तो ये एक बार संभव हो सकता था, दो बार मैं ये बोल रही हूँ वंशज, आप जो बोल रहे हैं आप एकदम सही बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स ने मत दिया है तो एबीवीपी जीता है, स्टूडेंट मत देते जीता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अकेले एबीवीपी जीता है। अभी स्टूडेंट्स मत देंगे तो शायद वहाँ पे कोई लेफ्ट संगठन भी जीत सकता है, या कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट भी जीत सकता है, शायद जिसका कोई भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं हो। वो तो आप स्टूडेंट्स पे छोड़ दीजिए ना, कि इलेक्शन जब होगा तो स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे। मैं बोल रही हूँ डिस्कोर्स खड़ा करना कि पैसे और पावर पे लड़ा जाएगा इलेक्शन, या इस बात पे लड़ा जाएगा कि मैंने सबसे पहले जब मैंने अपना ये बात बोल रही हूँ बोलना शुरू किया, मैंने सबसे पहले हिंसा का विरोध किया। और हिंसा, पावर, ये सब छात्र राजनीति में कभी भी नहीं आते। हिंसा, पावर, इन सब चीजों का छात्र राजनीति में हमेशा विरोध होता है। हम क्या कुछ सिद्धांतों को लेकर काम करें, हम एजुकेशन को लेकर काम करें तो शायद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपसे कहना चाहूंगी वंशज, आप कह रहे हैं कि आप हिंसा इन सब का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही संस्था के द्वारा बहुत ज्यादा हिंसा हुई है, और आप उसको कैसे जस्टिफाई करें? हिंसा, आप क्या कहना चाहते हैं कि संगठन ने हिंसा की? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी हो पाएगा कि संगठन के किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा की गई या कुछ। मतलब एटलीस्ट हैव द पावर टू से कि ओके, एबीवीपी डजंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वायलेंस shouldn't happen. आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो who have done violence, और ये सिर्फ मैं जेएनयू की बात नहीं, वो तो हमने जेएनयू में देखा था। आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे आगे चलते हुए जो वीडियो आपकी भी सामने आई थी कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिवम चौरसिया को मारते हुए भाग रहे हैं। देखो, तुम अगर बोलना चाहोगे तो बहुत कुछ बोल सकते हो, मैं भी बोलना चाहूंगी तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बात है कि तुमने मुझे देखा, एक भी एबीवीपी के एक्टिविस्ट ने आज तक ये बोला है कि मैंने जाके रॉड लेके उनका सर फोड़ा है? नहीं बोला है। आपका वीडियो सामने आई, जो बात आप कह रही है कि तथ्य की बात कर रही है कि आप एकदम फैक्ट की बात कर रही हूँ। तुम सुन लो पहले कि एक भी एबीवीपी के एक्टिविस्ट ने आज तक बोला कि ओइशी रॉड लेके लोगों के सर फोड़े की नहीं। उन्होंने उल्टा ये बोला, वीडियो निकाला है, सब कुछ है, और मैंने तो बोला है, मैंने एकदम जो हमारे वहाँ पे इंक्वायरी के लिए आए थे, मैंने तो बोला है कि जिन्होंने भी किया है उनका एकदम पनिशमेंट होनी चाहिए, और अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? हमने तो मना नहीं किया है, हमने तो बोला है कि आप टेस्ट कीजिए, टेस्टिफाई कीजिए। यूनाइटेड अगेंस्ट, मतलब वहाँ पे लेफ्ट के अगेंस्ट यूनाइटेड बोल के व्हाट्सएप ग्रुप जो चला था, उसमें मेंबर्स कौन थे? मैं तो नहीं थी। वहाँ पे जो लेफ्ट के अटैक करने के लिए जेएनयू के वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना था, वहाँ पे हमारे चीफ प्रॉक्टर थे, हमारे चीफ प्रॉक्टर धनंजय सर, जो खुद एबीवीपी के मेंबर थे, जो वो जेएनयू में पढ़ते थे। तो मैं ये बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात अगर वीडियो देखना है, एक मिनट, दूसरी बात अगर वीडियो देखना है तो अपनी ही दिल्ली के जो स्टेट कमिटी मेंबर है, वो शायद पद में भी है, वाइस प्रेसिडेंट है या कुछ है, अनिमा सोंकर, जो मेरे ही फैकल्टी से, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अपना पीएचडी रशियन सेंटर से कर रहे हैं, उनका सुन लो, उनका पूरा एकदम जस्टिफिकेशन सुनो कि हाँ, हमने अपने मेंबर्स जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है उनको बोला था कि वो स्टिक्स लेके रखे, एसिड रखे। ये बात से तुम इनकार करना चाहोगे, या फिर से वो वीडियो मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा बोलते हुए
तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि फिर मुझे भी वही वीडियो चलाना पड़ेगा जिसमें आयशी घोष लोगों के पीछे भागती नजर अटैक करती है। आयशी घोष अटैक कर रही है, भीड़ के साथ आ रही है एक छात्र के पीछे भागते हुए। तो भीड़ में तो बहुत लोग आते हैं, तो उसका मतलब वो अटैक कर रही है। तुम अटैक करते हुए आप सब आ रहे हैं, मैं अटैक कर रही हूँ, ये बात बता दो। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि आयशी घोष के हाथ में जस्ट अ सेकंड, वंशल त्यागी, लेकिन अनिमा सोनकर का जो लाइन है वहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम एसिड लेके बोले थे लोगों को रहने के लिए, स्टिक्स और रॉड रखने के लिए बोले थे, तो वो जस्टिफाइड है। अब तुम सिर्फ ये बात बोलो, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? किसने बोला कि जो लाइन बोला था, अनिमा सोनकर ने जो बोला है वो जस्टिफाइड है कि नहीं? अनिमा सोनकर जी ने जो बोला वो गलत होगा, ऐसा नहीं बोला होगा, ऐसा नहीं बोला होगा, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बोला है, ऐसा ही बोला है। अक्षय है, अजरा है, आप लोग फिर से वो जाके सुनिए, वंशज आप सुनिए उस बात को फिर से जाके। आपने जैसा मेरा वीडियो देखा है ना, आप जाकर अनिमा सोनकर जी का भी वीडियो देखिए और सुनिए अच्छे से। और उसके बाद मुझे सिर्फ ये जानना था कि आप अनिमा सोनकर जी के साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अगर उन्होंने ये बोला है और जो कि उन्होंने लाइव टीवी डिबेट में बोला है। आयशी जी, आप जिस टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं वो टाइम्स नाउ का था। उसमें टाइम्स नाउ पे मैं ही खुद अनिमा सोनकर के साथ डिस्कशन में था। वो जो पद्मजा जोशी जो एंकर जी है वहां पर, उन्होंने जो फोन उठाकर दिखा वो फोन मेरा ही है। वो वीडियो कहो तो मैं आपके सामने ही दिखा देता हूँ। मिस्टर वंशल त्यागी, आप मेरी प्रोफाइल ट्विटर पर जाकर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। इसमें अनिमा सोनकर जो है विद्यार्थी परिषद से, वो कन्फेस करती है, ठीक है, कि हमको रॉड और डंडे लेके जाने के लिए कहा गया था। या तो आप अपनी पैनल पर बैठे हैं अजरा अली जी के साथ, आप एक्सेप्ट करें कि अनिमा सोनकर आपकी मेंबर है कि नहीं है। दूसरी बात आपने कही, क्या कहा कि हमारे मेंबर कभी वायलेंस नहीं कहा। आप बहुत देर बोले, मेरे को बोलने दो यार। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से है नहीं आयशी जी, मैं हूं, मैं जानता हूं कि ऊपर कौन है और नीचे जमीन की धरती की कौन कौन रहता है। आपने क्या कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी वायलेंस नहीं होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता है, आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी है, इसका नाम है भरत शर्मा, और ये अभी लॉ फैकल्टी का छात्र है, मैं भी खुद लॉ फैकल्टी से हूँ। मैं आपको जरा इसका एक नजारा दिखाऊंगा, देखिएगा। ये ब्लैक शर्ट में, यस, ये देखा आपने, ये ब्लैक शर्ट का लड़का है, ये आपका लड़का है, देखो ये आपका लड़का है। दिखाऊं दोबारा, आपने देखा नहीं शायद। ये जब वायलेंस हुआ डीयू में उसके बाद का है, देखिएगा इसको ध्यान से। ये भरत शर्मा, आप ट्विटर पर जाके मैं 1 लाख से ऊपर को भी देखता हूँ। आप एक मिनट वंशल जी सुन लीजिए। आप बोलते बहुत सुनने की हिम्मत रखिए। There is a difference between a debate and an argument. Will you listen to me? Will you listen to me? Doesn't agree to violence. I'm sorry, आप दोनों कोई भी हिंसा को कभी कोई सही नहीं ठहराएगा, पर अगर एक आदमी को कोई मारेगा तो शायद वो ये नहीं। वंशल त्यागी जी, डिबेट और आर्ग्यूमेंट में एक बहुत फर्क होता है। मैं चाहूंगा कि आप उस बात की गरिमा मेंटेन करके रखें कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट को उसमें कन्वर्ट ना होने दें। आपने दूसरी बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो हमको कोई मारेगा तो हम उसको रिप्लाई बैक करेंगे, हम उसको अपना जवाब रिप्लाई बैक नहीं करेंगे। शायद ये नई ऊर्जा, ये नया स्वर चुप बैठने वालों में नहीं है, ये शायद अपनी बात को रखेगा, अपनी बात प्रशासन के आगे आपके संगठन के ना सिर्फ लड़के, आपके संगठन की महिलाएं, जिसके अंदर मैं नाम बताऊंगा, अंकिता विश्वास जो कि यूनिट प्रेसिडेंट है हिंदू कॉलेज की, सोनल शर्मा जो कि यूनिट प्रेसिडेंट है एबीवीपी रामजस कॉलेज की, वो साफ साफ दिख रही है कि जब कोई प्रोटेस्ट करता है, तो जब कोई आर्ट्स फैकल्टी पे कोई कार्यक्रम हो रहा होता है किसी भी अनेक पार्टी का, तो वो वहां पर पहुंच जाती है और वो किस तरीके से लड़कों को और लड़कियों को असॉल्ट करती है, ये आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। अगर आप किसी छात्रा के साथ, भैया आप अगर किसी छात्रा के साथ गलत होता है, वंशल त्यागी जी, के साथ गलत होता है, छात्रा के साथ नहीं है, तो छात्र के साथ गलत होगा तो आप मारेंगे। ये आप देखो ना, ये आप देखो ना, ये आपके संगठन की लड़कियां, आप बोलना चाहते हो छात्र के साथ गलत होगा तो आप मारेंगे, आप मारेंगे, आप मारेंगे, आपके संगठन की लड़कियां लड़कियों को कैसे असॉल्ट करेंगे, मैं आपको लड़कियों को भी मारेंगे, असॉल्ट कर रहे हैं।
मैंने सबसे assault कर रहे पहले थे। कहा कि नहीं, संगठन आप कभी मान हिंसा का लीजिए समर्थन नहीं संगठन करता। नहीं, और अगर संगठन हिंसा उसे का अगर समर्थन आपको नहीं कोई करता है, मारने आया है, आप लेकिन क्या करेंगे? संगठन समर्थन का ये वायलेंस का समर्थन नहीं करता है, ये हम लोग भी बोल रहे हैं। हो सकता है आपका पॉलिसी है कि संगठन समर्थन नहीं करता है, लेकिन आपके जो मेंबर्स ओपनली बोले हैं टीवी डिबेट्स पे कि हम लोग एसिड रखे, आपके जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, अक्षय दिखा रहा है कि मार रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं? यस और नो, इसमें आप रिप्लाई दीजिए। आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, मेरी बात सुनिएगा। जो इतना ही है, मेरी इतना ही है। हम मेरी इतना बात ही सुनिए। सुनना चाहते थे, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे? justify हम नहीं कर इतना रहे ही ना। सुनना करेगा, चाह रहे परंतु मेरी बात सुनिएगा। अगर किसी महिला Thank के you. साथ बदतमीजी हुई, क्या उसे ये भी हक नहीं कि वो अगर कोई बदतमीजी कर रहा है उसे रोके? अगर अंकिता विश्वास ने सोनल शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश रोकना करी, किसी और लड़के एसिड को फेंकने रोकने में की कोशिश डिफरेंस करी, होता है। रोकना और कहां पर एसिड एसिड फेंक फेंका अंकिता नहीं, विश्वास ने? आप झूठ को फैलाने की कोशिश मैं मत अंकिता करिएगा। की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं अंकिता की बात नहीं कर रही हूँ, वो अक्षय कर रहे वंश हैं। त्यागी, आयशी जी एक मिनट। हाँ, वंशा जी आप जो बात कर रहे अक्षय भाई हैं, ने वंशा जिस जी आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि महिला का जब पीड़ित, महिला का पॉइंट ही तब उठता है जब या तो आरोपी पक्ष कोई मर्द हो या कोई और हो। जब आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों महिलाएं हैं तो आप डोंट प्ले दिस वुमन कार्ड यार। आपको वीडियो में मैं तो प्लीज हैव सम शेम, आई विल सेंड यू द वीडियो। आप मेरे साथ फेसबुक पर कम से कम 106 लोगों के साथ म्यूचुअल फ्रेंड है, आपको वो वीडियो भेज दूंगा। आई एम हैविंग माय closing remark Azra, because I think the Zoom timing meeting will go up, because I just want to say, देखो वंशज त्यागी जी, आप जिस तरीके से अभी विद्यार्थी परिषद की एडवोकेसी यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप उस संगठन से हैं। लेकिन आपको मैं कितनी बात बता दूं, आपके जो सीनियर रहे हैं, आपके जो कॉलेज के से पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मैं एक एक करके नाम गिनवाऊंगा, उनके ऊपर लगे हुए आरोप बताऊंगा। 2015 के अंदर आपके अध्यक्ष रहे सत्येंद्र अवाना, उनके ऊपर टीचरों के खिलाफ मारपीट में, घर के अंदर दहेज मांगने के लिए और अनफेयर मींस चीटिंग का केस दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है। 2016 में आपके अध्यक्ष रहे अमित तंवर, उनके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चीटिंग का केस चल रहा है। 2017 के अंदर एनएसयू का अध्यक्ष बना, उसके ऊपर आप एक केस बता दीजिए। 2018 के कौन अंदर नहीं है, कौन सा केस नहीं है? आप रोकी जब दूसरे के खिलाफ केस नहीं जानते? लेट मी कंप्लीट। जी जी। जब दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि रॉकी तुसीर चुनाव लड़ सकता है, इट वाज अ पेटी केस, जस्ट रीड द स्टेटमेंट बिफोर कमिंग अप। आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो सत्येंद्र अवाना को कभी किसने दोषी ठहराया? सत्येंद्र अवाना को किस कोर्ट ने दोषी ठहराया? Satinder Awana was barred. Satinder Awana and Amit Tawar were barred from the Delhi University to appear for the exam. Now listen to me. 2018 के अंदर आपके अध्यक्ष को, 2018 के अंदर मैंने हाई कोर्ट की बात की, तो रॉकी तुसीर को हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी चुनाव लड़ने के लिए। बाद में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस पर पिटीशन लगाई कि आप इसको दोबारा चुनाव कैसे लड़ने दे रहे हैं, बाद में भी हाई कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी। आप कैसे कह रहे हैं उसको? आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते नहीं, यहाँ पर आप बाजा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बात करके आते हैं। आप सभी, मैं आपकी बात को सुन आप सभी कौन है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आरोपी है कौन? आप कानून हाई कोर्ट कह रहा है, आप भी ये जानते हैं कानून के छात्र में फर्क होता है, आरोपी और दोषी में फर्क होता है। आप बिल्कुल ऐसे ही सत्येंद्र या अमित को दोषी ठहरा सकते हैं कि सत्येंद्र अवाना ये वो चीटिंग केस के अंदर दोषी थे, 2 साल के लिए उनको यूनिवर्सिटी से पनिशमेंट मिली थी। आप दोषी का मतलब समझिए, आप मुझे मत समझाए। वो 2 साल दोषी रहे, 2 साल लॉ फैकल्टी का पेपर नहीं लिख पाए। कैंपस लॉ सेंटर में उनके साथ पढ़ता हूं मैं, अक्षय लाकड़ा नाम है मेरा, कैंपस लॉ सेंटर 3rd ईयर का छात्र हूं मैं। अभी जहां पर बैठ के तुम लोग यहाँ बैठ के जो ये मंडली बनाकर पूरा किसी को किसी भी यूनिवर्सिटी में दबा लेते हो ना, अपने सीनियर से जाके पूछना, सरेआम सावरकर की मूर्ति हटवाई थी कौन था? सरेआम दिल्ली मेट्रो रोकी थी कौन था? और आज जब 4 साल से बतौर एनएसयू ईट से ईट बजा रही है विद्यार्थी परिषद के साथ, और तुम्हारे हर एक काले कानून वो तो यूनिवर्सिटी का निकाल के हम लोग लेकर आ रहे हैं, प्रत्येक छात्र जब भी जो हम निकाल के लगा के लेकर आ रहे हैं ना, इसीलिए आपके कागज फर्जी निकलते हैं। आपका इसलिए आपके कागज फर्जी निकलते हैं, उनकी बसवाई को इस्तीफा देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के फर्जी कागज प्रधानमंत्री के, फर्जी कागज स्मृति ईरानी के, आपके मिनिस्टर की श्रीलंका की डिग्री फेक, आपको पता है? यूनिवर्सिटी का तभी सभी छात्र अगर ये बात कहने के लिए आ रहे हैं, अगर मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। I was submitting my closing remark, Azra. I mean, yeah, okay. I would request you to आपके पैनलिस्ट को provide them with some sense, क्योंकि मैं I was saying कि मैं अपना closing remark दे रहा हूँ, आपको ये नहीं पता closing remark दे रहा होता है। That means the discussion is ending. You won't be interfering in that. ठीक है भैया? और आप जहां तक बात कर रहे हो ना, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आप जिस कैंपस से आते हो, जग जाहिर बात है, सबको पता है। टाइम्स नाउ का डिबेट है, अनिमा सोमकर का कन्फेशन है, पद्मजा जोशी एंकर है,
ट्विटर पर हैंडल है, जाके मेरा देख लीजिएगा, 1 लाख से ऊपर के व्यू हैं। और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी और तमाम फिल्म स्टारों ने उसको शेयर कर रखा और कमान रखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑन रिकॉर्ड कन्फेशन कर रही है कि हमने गलत किया है। आपके 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र, आप फिर बीच में बोलेंगे, आप एक बार रुक जाइएगा। आपके 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंटों पर यूएफएम का केस चल रहा है। एक की डिग्री फर्जी निकली थी, एक पर डूसू के फंड का 26 में से 15 लाख की चाय पीने का आरोप है। आप यहाँ पर बात छात्र राजनीति के अंदर एडवोकेसी कर रहे हैं, तो वायलेंस को आप लोग सिरे से नकारे और मानिए कि आप लोगों ने जेएनयू के अंदर वायलेंस किया है, और आप मानिए कि आप डीयू के अंदर वायलेंस करते हैं और आपके मेंबर उसके अंदर आरोपी पाए जाते हैं। आप मानिए इस बात को। मुझे लग रहा है कि हमारा डिस्कशन जो था वो किसी और ही तरफ जा रहा है, और आप ये होना लाजिम है क्योंकि आप तीनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तीनों की अलग आइडियोलॉजी है और कॉन्फ्लिक्ट होएगा, डिबेट होएगा। लेकिन हमारा जो आज का वो था, ये था कि स्टूडेंट्स का क्या रोल रहेगा पॉलिटिक्स में, और ये डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही गलत तरफ जा रहा है। और आप सभी की बातें, आपके पास सभी के जो भी है, आप सही कह रहे हैं, अपने तीनों अपनी जगह कुछ ना कुछ सही ये कह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हमें इस पैनल डिस्कशन को ख़त्म करना होगा और आप सबकी क्लोजिंग रिमार्क्स देने होंगे। तो जैसे कि हम सब देख ही चुके हैं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ही डाइवर्स है, और यही डाइवर्सिटी हमें आज देखने को मिली इस पैनल डिस्कशन में, जो व्यूज़ दिखे, डिफरेंट व्यूज़ दिखे। तो मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है बहुत ही अगली होती जा रही है, बहुत डर्टी होती जा रही है, और इसी वजह से जो है आज के छात्र जो है वो डरे हुए हैं, वो नहीं आना चाहते इसमें, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स। और जैसे कि गवर्नमेंट नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जैसे आजकल विच हंटिंग हो रही है स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट की, तो आप तीनों का क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कि उनका आप क्या कहना चाहेंगे, कि किस तरह से आप उनको प्रोत्साहन देना चाहेंगे, कि कैसे आप उनको अपना विचार रखना चाहिए और कैसे वो अपना आप को एक सही तरीके, सही मार्ग पे रख सकते हैं। तो आयशी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अजरा। आई थिंक सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू से, कि एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोगों की विचारधारा अलग होगी, लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट दिस आइडियाज दैट वी ऑलवेज वांट टू कीप इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स और द सिटीजंस, एंड एज स्टूडेंट्स, एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी हैव ऑल राइट to question the policies that are framing our lifestyle or our lives, and there is nothing wrong in it. मतलब मैं एक चीज क्लोजिंग में बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री या उनके पार्टी के खिलाफ बोलना देशद्रोही नहीं होना होता है। ये स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि आप डरिए मत। आप अगर सोच रहे हैं कि 2 दिन आपको जेल में डाल देंगे या आपको ट्रोल करेंगे सोशल मीडिया में क्योंकि आप आज इस सत्य के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ बोला जाता था तब अंग्रेज ये करते थे। जब पहले भी, ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट पॉलिटिक्स 2014 के बाद से शुरू हुआ है, उससे पहले भी सत्ता के खिलाफ बोला गया है, तब भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को एक तरीके से फेस करना पड़ा है असॉल्ट। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स डर रहे हैं और सोच रहे हैं, और हालांकि ये बात जरूर है, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगी, 2014 के बाद से जिस तरीके से ऑनस्लॉट है स्टूडेंट्स पे, मेरे ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट 30 इंक्वायरीज ऑन मी, जिसका शायद बिल कुछ 5-6 लाख का आएगा। तब मैं पूछूंगी, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन तब मैं पूछूंगी कि फी हाइक के विरुद्ध में प्रोटेस्ट करने के लिए कौन से स्टूडेंट को 6 लाख रुपीस का फाइन दिया जाता है। इससे पहले भी जेएनयू के ऑफिस बेरर्स को दिया गया है, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, बहुत सारे संगठन से, सिवाय एबीवीपी के, मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूंगी, उनको कोई फाइन नहीं दिया जाता है उसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन बाकी लोगों को दिया जाता है in a way so that students in the coming generation don't speak up. They feel so to make them vulnerable कि कल अगर हम बोलेंगे तो हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है हमें इतना फाइन देने के लिए, इसके लिए बेटर है चुप होना। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, it is the strength of unity, it is the strength of our organized politics that we will be able to defeat any kind of ills that is happening in our society, and it is our right to question what is happening in our country at this moment or will happen in the coming days. चाहे कोई भी सत्य में हो, स्टूडेंट्स को सीखना पड़ेगा क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी जो एजुकेशन है उसका कोई मतलब नहीं होता है। चाहे सत्ता में कोई भी हो, हमें प्रश्न करना चाहिए और सीखना चाहिए। और आज जो प्रश्न करने के लिए सरकार
के विरुद्ध में जो प्रश्न कर रहे हैं उनको जिस तरीके से जेल में डाल दिया जा रहा है किसी भी केस में। मैं सिर्फ लास्ट में काफिल खान का नाम लेना चाहूंगी, जो एक डॉक्टर थे यूपी में, इतने सारे बच्चों को बचाए थे, सबको पता है, ये सबके सामने है। उनको 7 महीने जेल में रखा गया। उसके बाद कोर्ट ने बोला उनका स्पीच तो यूनिटी का स्पीच था, तो किसके आधार पे आपने एनएसए या यूएपीए लगाया था उनपे उससे 7 महीने पहले? उनका वो जो 7 महीने है वो क्या उनको वापस आप दे सकेंगे? उनका जो 7 महीने है जिससे आपने उनका पूरा इमेज को टार्निश कर दिया, क्या वो आप उनको दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। तो बात यही है, बार बार कोर्ट ये झुटलाया जा रहा है एक एक केस पे कि नहीं, इनके आरोप जो लगाया है पुलिस ने और उनको जेल में डाल दिया है, वो आरोप के कोई वीडियो के एविडेंस तक भी नहीं है। बात वही है। लेकिन ये जो फ्रेमिंग की जा रही है, जेल में डाला जा रहा है कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स ना बोले, और भगत सिंह, गांधी सबने यही बोल के गए थे कि गांधी को मारा गया था उसी वही शख्स जिनको मारा गया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे ना वो। इसीलिए नाथुराम को अच्छा नहीं लगा और वो चाहते थे एक अलग टाइप का इंडिया का सोच रखते थे नाथुराम गोडसे, और इसीलिए उनको मार दिया गया गांधी जी को। तो आज भी हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर अंबेडकर, भगत सिंह, गांधी, इनका सोच चलेगा। वो जो अंबेडकर जो संविधान लेके गए उस संविधान को हमें मानना पड़ेगा, और वो संविधान हमें राइट देता है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट। और अगर वो देता है तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम क्वेश्चन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और किसी भी सरकार का विरोध करना एंटी नेशनल इस देश में नहीं कहलाया जा सकता है। बस बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार का अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं कहलाया जा सकता, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं यही बात कह रही थी कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है पूरे सोसाइटी में कि जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार के खिलाफ बोलेगी वो उसको देश विद्रोही, एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो ये एक हेट्रेड एटमॉस्फेयर जो बन चुका है, हेट का। तो इसी पे मैं ये कहना चाहूंगी कि यही मेरा सवाल है कि आगे जो आगे आने वाले छात्र हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। हमें उनके लिए छोड़ना है मॉल जहाँ पे वो एक अपना उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी बात रख सके। तो अक्षय आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि एक बच्चों के मन में जो डर होता है राजनीति में आने का, और अभी उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले हमको इस देश के अंदर बच्चों को नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के बीच का फर्क बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि जो सत्ताधारी पक्ष है और जो अपोजिशन है वो दोनों अपना काम करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि राजनीति के मायने क्या होते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि नेताओं का काम सिर्फ वहां खत्म नहीं होता है कि वो अपने वायदे पूरे करें, बल्कि देश को दिशा दिखाएं, आपको एक विजन दे। और आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी उसी चीज की है, क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है। वी आर विजनलेस राइट नाउ। वी आर हैविंग नो क्लैरिटी इन आवर माइंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सेम गोज विद द पीपल की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के हेड बनाए जाते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर हो, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, आप उन तमाम अपने अपने नुमाइंदों को बिठा देते हो जिनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वही it happens where what then Nirmala Sitharaman does to economy. I mean, you have no idea about it, and then you will shut people other mouth कि आप उनको कोई भी एक लॉजिकल रीजन देकर उनको चुप करवा देंगे। आपने खुद कहा कि आप राजनीति में आए, बच्चों को डर लगता है, नॉर्थ कैंपस जाने में डर लगता है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आज मैं बहुत सिंपल घर से आता हूँ। मेरे घर में शायद वोट ही पहले कभी को डालने के लिए गया हो, कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरे घर में कोई इस प्रकार से नहीं है कि हम लोग बहुत ही साउंड फैमिली से हो। मैं किसान परिवार से आता हूँ। आज भी दिल्ली के अंदर हमारी जमीन उस पर खेती होती है, और मैं कोई बिना किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के आज इस सिस्टम के अंदर हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और राहुल गांधी जी ने क्योंकि इकलौती ऐसी पार्टी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होते हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, लेफ्ट को देख लीजिए, राइट को देख लीजिए, तो उस प्रकार से इलेक्शन लड़के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई डिड दैट। और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को पता हो कि एनएसयूआई का स्टेट का इलेक्शन कैसे होता है, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट। और मैं वो इलेक्शन लड़के यहाँ पर इलेक्शन जीत के यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे हिसाब से इस प्रकार के प्लेटफॉर्म यदि बच्चों को मिलेंगे कि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का बच्चा आए, चुनाव लड़े और आगे बढ़े, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक बात है छात्र राजनीति की और मेरे क्लोजिंग रिमार्क की, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि घर बैठ के सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे कुछ भी डालने से बदलाव नहीं आता। आपके व्हाट्सएप स्टेटस से बदलाव नहीं आता है। बदलाव तब आता है
जब आप सिस्टम के अंदर घुसते हो, आपके हाथ गंदे होते हैं, खुद आप जब उसकी सफाई करते हो, बदलाव तब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। वंशज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपना क्लोजिंग रिमार्क बोलिए और आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ छात्र राजनीति जा रही है और आगे इसका क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस तोड़ने की राजनीति से जोड़ने की राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। हम जिस अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि हमें कदम मिलाकर चलना होगा। जब आपने 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट चला तो सब छात्र अगर सड़कों पर आए तो तत्कालीन 10 साल की सरकार को इस तरह हिलाकर रख दिया कि उसे अपने वर्चस्व देखना पड़ रहा है और 40 से 42 सीटों पर अटक गई है। और मेरे भाई, बड़े भाई ने अभी जिक्र भी किया अध्यक्ष चुनने का, वो तो सभी जानते हैं वो कितना पॉपुलर है कि कांग्रेस में किस तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है, वो बात नहीं है। परंतु जिस तरह आयशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना गलत है या गलत नहीं है, मैं उस बात पर नहीं जाता। पर कानून द्वारा, हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया फैसला कि अफजल गुरु को अगर फांसी दी जाती है, अगर उसके खिलाफ अगर नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, क्या वो सही है? आप कानून, देश के सर्वोच्च संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ, सरकार के खिलाफ सवाल उठे वो बहुत अच्छा है। सरकार के खिलाफ हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उन्हें चुनकर भेजा। अगर हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो हम कैसे जागरूक वोटर और कैसे जागरूक नागरिक हैं? हमें उनसे सवाल पूछने होंगे, हमें उनसे प्रश्न करने होंगे, और जब हमारे प्रश्न उनके तक जाएंगे तभी सुधार हो पाएगा। हम जो युवा हैं, हम नया जोश हैं, हमारा काम केवल सवाल पूछना ही नहीं होना चाहिए, हमें सजेशन भी सरकार को देने चाहिए कि किस तरीके से अच्छा हो सकता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, हम शायद हमारे में से बहुत लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया होगा कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या गलतियां हैं, क्या वो है। क्या हमने सरकार को, क्या प्रधानमंत्री ऑफिस में या कहीं पर हमने लेटर लिखा कि हाँ ये अच्छा हो सकता है, ये इस तरीके से अच्छा हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर हम युवा हैं तो हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। एक युवा जिसने 70 के दशक में युवा ने बदल कर रख दिया 2011 में, 2012 में निर्भया, अपनी बहन निर्भया को उनका आरोपियों को फांसी दिलवाने के लिए जो हर छात्र सड़कों पर आ गया, चाहे वो किसी संगठन का था, वो नहीं था, पर हर छात्र सड़कों पर था। तो अगर छात्र एक हो जाता है तो हर चीज झुक जाती है। तो छात्र के लिए ऐसा नहीं है कि जो आपकी तरफ से बात उठाई गई कि सरकार के खिलाफ बोलने पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, शायद ये केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हाँ, जो अगर कोई दिल्ली दंगे की साजिश रचता है और बैठकर दिल्ली दंगे करवाना चाहता है, उसे अगर सजा मिले, वो आप भी मानेंगे वो कोर्ट की तरफ से आ रहा है। के बारे में बोल लीजिए ना, आप काफिल खान के बारे में बोल लीजिए, वो तो कोर्ट से ही आया है ना, आप बोल लीजिए काफिल खान पे आपका तो कोर्ट क्या ने उन्हें राय है? निर्दोष ठहरा दिया तो वो बाहर आ गए। तो ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट ने पहले जो उनको डाल दिया 7 महीने कोर्ट पे, वो जेल पे, वो क्या था? जब वो आरोपी थे, आरोपी वो जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, किसी को भी जेल में डाल देना जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट थिंग्स, बिकॉज दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इज नॉट राइट। एंड सेकंड ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू एंड क्लियर यू वन फैक्ट, लेट मी क्लियर, आई एम फ्रॉम द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफिस बेरर्स, जो नेशनल ऑफिस बेरर्स है, उन्होंने निशंक जी से मिले भी थे और एनईपी पे डिस्कशन भी किया था और बोला भी था कि एनईपी के अंदर क्या क्या अच्छा है, क्या क्या एनईपी में अच्छा है, क्या क्या इस कंट्री में एनईपी के अगर लाया जाएगा पर्टिकुलर क्लॉजेस क्या गलत हो सकता है। और उसके बाद ही जब इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान इसको लाया गया, तब हमने बात उठाई कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर गुड, बट दिस NEP as a whole is trying to push privatization. बट फिर भी मुझे ये बोला गया कि मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट नहीं कराए। आपके ही संस्थान के लोगों ने, मैं ट्वीट दिखा सकती हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपनी एमफिल जमा करने जा रही हूँ। मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने जो बात उठाई कि कुछ मेरी बात मैं आराम से बोल रही हूँ, एक मिनट सुन लो। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना कि ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये अफवाह नहीं है, ये अफवाह नहीं है। हर दिन जिस तरीके से हम लोगों को ट्रोल किया जाता है, जस्ट बिकॉज वी हैव एन ओपिनियन, बिकॉज आई एम अ वुमेन, बिकॉज आई हैव एन ओपिनियन, आई कैन बी फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज माय राइट, दैट इज माय राइट ऑफ एक्सप्रेशन, दैट व्हिच पॉलिटिकल पार्टी और व्हिच पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद। ये क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं किस एनईपी में क्यों मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट की इज्जत है कि नहीं है? लेकिन मुझे जाहिल औरत बोलना
और मैं बुज़दिल हूँ और मुझे समझ नहीं आता है ये टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार के विरोध कर रहा है, ये बोलना सही बात है? नहीं है। बिकॉज मैं समझती हूँ ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जितना आपको बोलने की हक है उतना ही मुझे बोलने की हक है। अगर मेरे सामने बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान, अगर कोई बच्चा जो तेलंगाना में काम कर रहा था अपने घर छत्तीसगढ़ वापस आते आते एक 12 साल की लड़की मर जाती है और उसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ, तो ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। और उसके लिए अगर लोग ये बोलते हैं कि मैं टैक्स पेयर से पैसे से पढ़ती हूँ, तो मैं गर्व से बोलती हूँ हाँ मैं पढ़ती हूँ और ये पढ़ती हूँ इसीलिए प्रश्न करना जानती हूँ और करती हूँ। तो बात जो सबसे पहले मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप ये भी नहीं बोल रहे, डू यू स्टैंड विद काफिल खान नाउ? Do you stand with Kafil Khan now? Just accept that fact. Do you stand with Kafil Khan now? It was UP government who said that he is a terrorist. Do you stand with Kafil Khan now? सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। आप बताइए काफिल खान के साथ आप खड़ा होते हैं कि नहीं होते? एक लाइन में आप बताइए काफिल खान के साथ खड़ा होते हैं कि नहीं होते? आप बताइए पहले ना। बात मेरी बात सुनिए। अब आप एक तरफ मुद्दे को ले जाना चाहेंगे, इससे कुछ फायदा थोड़ी है। आप मेरी बात सुनिए। मुद्दा एक तरफ नहीं जा रहा है। जब आपने अगर कोई आरोपी था उसमें कोई सरकार को आप नहीं जोड़ सकते कि ये हुआ। और मैं किसी सरकार का प्रवक्ता यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात उठा रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई सरकार नहीं है या कोई किसी सरकार के पिछले नहीं है। इसीलिए 2016 में जब सौरभ शर्मा जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी पोजीशन, सौरभ शर्मा एबीवीपी से सबको पता है, अभी प्रोफेसर है जेएनयू के अंदर, तो 2016 में जेएनयू एसयू में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद चुना। ये तो जेएनयू की डेमोक्रेसी की खासियत है ना, इलेक्शन करने की खासियत है कि एबीवीपी वहां पे चुनाव लड़ता भी है और जीतता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले जाके वो प्रधानमंत्री से मिले। क्यों? वो जेएनयू के स्टूडेंट से नहीं मिले लेकिन वो प्रधानमंत्री से मिले। क्यों? तो आप भी अगर प्रधानमंत्री से मिले क्या गलत है? अगर एक प्रधानमंत्री से मिलने में वो क्या गलत है? नहीं। आप सुनिए, आप आरएसएस के प्रवक्ता से भी मिलते हैं, आप लोग मोहन भागवत से भी मिलते हैं, ऐसे भी फोटो निकाल के डाल सकते हैं। सबसे मिलना चाहिए। तो गलत क्या है? विचारों का आदान मोहन भागवत से तो कभी नहीं मिलेंगे, ये बताना चाहूंगी। आपकी अपनी पर्सनल समझ हो सकती है कि आप ना मिले। नहीं, तो जेएनयू में मोहन भागवत ने जिताया था। जेएनयू में सौरभ शर्मा को जितवाया था किसने? जेएनयू के स्टूडेंट्स या मोहन भागवत ने? जेएनयू के छात्रों के बीच में ही हो रहे होंगे कि आज जब भी वो प्रोफेसर है, जब भी छात्रों की सुनते हैं। He is loyal at the end of the day, he is loyal to RSS. He is loyal to RSS, and that is why we have seen what he has done and what is ABVP doing still. This is what I wanted to say. That's it. ये जो आप भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इसका कुछ फायदा नहीं है, आप फैलाते रहिएगा और ये होता रहेगा। और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगाते रहिएगा। मैं 2016 में वो घटना के बाद गई थी, अगर आपको पता है तो। मैं एमए करने 2016 की सितंबर में गई थी, मेरा सेकंड लिस्ट में जेएनयू में नाम निकला था। मैं अगस्त के बाद जेएनयू गई थी, उससे पहले मैं एमए डीयू में कर रही थी कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आप हर जगह पे आरोप लगाने से पहले आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। आप भी आरोप लगाने से पहले सबसे पहले सोच लीजिएगा। हमने ये बोला कि आप काफिल खान के साथ अभी स्टैंड करेंगे, आप अभी स्टैंड करेंगे। काफिर खान नहीं, आप सौरभ शर्मा जी पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ये किया और वो किया। ये कुछ फायदा है इस बात का? इस बात का फायदा इसलिए है, क्या छात्रों की आवाज नहीं सुनी सौरभ शर्मा ने? छात्रों के मध्य नहीं रहे सौरभ शर्मा? दिख रहा है। अगर एक आदमी अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहा है, आपको उससे भी कष्ट होता है कि प्रधानमंत्री से मिलना बहुत गलत बात है। हम सब मिलते हैं प्रधानमंत्री से, कोई दिक्कत नहीं। बट आप तो बोल रहे हैं ना, फंड कराया जा रहा है। लोगों ने शायद उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट मिला भी नहीं होगा, उन्होंने अपनी ओपिनियन भी नहीं दी होगी। ओपिनियन हमने दिया है और आज भी हम ओपिनियन सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने दिया है। विद्यार्थी परिषद के आप विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले नो अजरा, आई जस्ट वांट टू आस्क हिम कि विद्यार्थी परिषद हैज गिवन देयर ओपिनियन ऑन द फर्स्ट, is it the responsibility of the government to only listen to ABVP and say कि only because ABVP विद्यार्थी ये किसने कहा? आपको क्यों बुलाया? आप क्यों बोल रहे हैं? बात क्यों सुनी? आप क्यों बोल रहे हैं? मैं यही बोल रही हूँ, मैं यही आपको ऑन कैमरा बोल रही हूँ। ये नया युवा अगर अपने विचार नहीं देगा तो कैसे मेरी सजेशन अभी भी आपके पास है। मैं पड़ेंगे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ और मेरा अभी भी सजेशन है कि मैं एनईपी पे सही में कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप प्लीज बोलिए ना आपके पीएम से कि ये बात सुने, एसएफआई ने जो मेमोरेंडम किया था उस पर सुने। लेकिन हमें न्यूज में क्या पता चला कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने बोला कि मुझे गर्व होता है आज बताने में कि एनईपी में जो रेगुलेशंस लाया गया है दैट इज 60% व्हाट द आरएसएस टोल्ड। आर यू गोइंग टू डिनाई दैट फैक्ट दैट द स्टेटमेंट ये बातें का मनगढ़ंत और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात अगर अभी आप क्या बोल रहे हैं? इसका शायद कुछ भी गोदी फायदा मीडिया है, मीडिया फिर गोदी मीडिया है कि वो बात ठीक से नहीं बोल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहा है तो आप मान रहे हैं मीडिया जो भी बोल रहा है अनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं।
तो फिर बोलिए मैं मीडिया पे विश्वास नहीं करूंगी उस बात पे। आप बोलिए, आप किस कि तरीके बहुत से बात को ले बोला जाना है। चाह रहे हैं? वंशज और आयशी, सॉरी मुझे आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत लंबा हो चुका है और आप दोनों के विचार, मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट होएगा और वो होएगा, लेकिन मैंने आप सभी से क्लोजिंग रिमार्क्स ले चुकी हूँ और हमारा डिस्कशन जो था वो था छात्र का योगदान जो है पॉलिटिक्स में क्या रहा है, और हम देख चुके हैं और सब देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत एक्टिव रही है और हम चाहेंगे वो आगे भी रहे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस डिस्कशन पर और अपने विचार रखने के लिए और हमें बताने के लिए कि देखो, तो हम देख ही सकते हैं आज के डिस्कशन से कि कितना इंडिया डाइवर्स है और हाँ, सबको बोलने का, मैं अंत में ये कहना चाहूँगी, सबको बोलने का सबको बोलने का हक है इस देश में क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबके पास एक विचार रखने का भी हक है। तो हम किसी पे कोई फोर्स नहीं कर सकते, किसी पे अपना विचार, अपना व्यू हम लगा नहीं सकते। तो वंशज, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं आपको 1 मिनट दे सकती हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आयशी जी ने अनुच्छेद 19 में उसकी बात कही थी कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो शायद उसकी कुछ देश के खिलाफ ना बोलने की रेस्ट्रिक्शन भी है 19.2 में। तो शायद हमें उन चीजों को भी समझना होगा। अगर देश के लिए कुछ अच्छा है, हमें अपने सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आइडिया देने होंगे। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी नहीं सुनते, ये हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। परंतु हमें सबसे पहले अपने सुझाव देने होंगे, अपने बातों को उठाना होगा, अपने यूथ में क्या समस्या आ रही है, हमें उन चीजों को उठाना होगा। तो शायद हम एक अच्छे युवा का निर्माण कर सकते हैं और अच्छा मैसेज हम पूरे देश को दे सकते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरीके से देश में उभर रही है। और ये कोई अलग नहीं है। अगर जैसे मैंने निर्भया कांड वाला बताया और एंटी करप्शन मूवमेंट वाला बताया, तो इस तरह अगर देश का युवा साथ मिलकर भी आगे बढ़ेगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। परंतु अगर फिर आप उसे एक को भक्त, एक को अंधभक्त, एक को सेकुलर और इसमें बांटते रह जाओगे तो शायद कुछ फायदा नहीं है। और इसी तरह हम बटकर और ये कर एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। मैं हमेशा कहा है कि केवल जोड़ने की राजनीति करिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for joining us. We will end the discussion here. Thank you.